Dear students, today we are going to start chapter 2, Maths Part 1, Matrices, Miscellaneous Exercise 2a. Now question number 11. Find matrix X such that Ax equal to B where A equals 1, 2, minus 1, 3 and matrix B equals 0, 1, 2, 4. For the solution, since Ax equal to B, what is given? Ax equal to B. So Ax, which what we have to find here? We have to find matrix X, value of the matrix X, and it is in the form of Ax equal to B. This is given. So we should apply row transformation for matrix X. This means we substitute the value of matrix A and value of matrix B first. So what is value of matrix A? Matrix A equals 1, 2, minus 1, 3 into X equal matrix B 0, 1, 2, 4. Now we have to convert matrix A into an identity matrix. After converting an identity matrix, this will be I into X. But I into X equal to X only, and using same operation on the right hand side, so we will get value of X in this solution. So now see how will you convert this matrix into an identity matrix. So applying R2 changes R2 plus R1. What is this? R2 plus R1. So R2 plus R1 gives what? Now see, minus 1 plus 1 becomes 0, 3 plus 2 becomes 5. And first row 1, 2 remains unchanged, 1, 2 as it is, into X equals, here first row unchanged as it is here 0, 1, and second row becomes 2 plus 0 according to this rule R2 plus R1. 2 plus 0 becomes 2 and here 4 plus 1 becomes 5. Now we see that in row 2 this element is 5 but we want here 1. So applying R2 changes 1 upon 5 into R2. This means what? Dividing by 5 in row R2 in row second. So therefore first row unchanged 1, 2, but second row 0 upon 5 0 and 5 upon 5 becomes 1 into X equal to, here 0, 1 as it is, 2 upon 5 as it is, and 5 upon 5 1. So applying R1 changes R1 minus 2 times R2. R1 changes R1 minus 2 times R2 because it is 2. So here 1 minus 2 into 0, that is 1. Here 2 minus 2, that is 0. And row 2 unchanged. So as it is, we have to write here 0, 1 into X equals 0 minus 2 into 2 upon 5. That is 0 minus 4 upon 5 becomes minus 4 upon 5. And here 1 minus 2 becomes minus 1 because it is multiplied by 2. So this will be 4 upon 5 and this will be 2. So 1 minus 2 becomes what? Minus 1. And row 2 remains unchanged here 2 upon 5 and 1. Now this matrix is an identity matrix. So you can say Ix. Therefore Ix equals same matrix minus 4 upon 5, minus 1, 2 upon 5 and 1. But Ix equal to X. I into X equal to X. So therefore X equals minus 4 upon 5, minus 1, 2 upon 5 and 1. So this is the value of matrix X. Very simple question. So in any question, if it is given that Ax, now see once again, if Ax equal to B given, we should apply row transformation. If X into A equal to B given, we should apply column transformation. This is the rule, or you can say it is trick. Now in question number 12, find X if Ax equal to B, where
Matrix A equals 1, 2, 3, minus 1, 1, 2 and 1, 2, 4 and B equals 1, 2, 3. So dear students, consider if there are two matrices but their orders are not same. Matrix 1 means matrix A is 3 by 3 matrix and matrix B is 3 by what? 3 by 1. The 3 rows and 3 rows and 1 column. Here 1, 2, 3. 3 rows and only 1 column. So its order is 3 by 1. Here 3 rows and 3 columns are there. So its order is 3 by 3. So number of columns of first matrix equal to number of rows of second matrix. Therefore, A into B exists, right? But here you have to find Ax equal to B. According to this, Ax equal to B is given. You have to find value of matrix X. So value of matrix X will be number of columns and number of rows are in multiplication term. So remaining part is 3 by 1. Means coming matrix, or you can say matrix X will be in 3 by 1 order. So matrix A is 1, 2, 3 minus 1, 1, 2 and 1, 2, 4 into X equal to 1, 2, 3. This is value of matrix B and this is value of matrix A and Ax equal to B given. So again same process here, we have to convert this matrix into an identity matrix. Identity means 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So for the conversion, we should apply proper row transformations. So applying R2 changes R2 plus R1 and R3 changes R3 minus R1. Why it is? Because minus 1 plus 1 is 0 and 1 minus 1 is 0. Because we want here 1, 0, 0. So applying R2 changes R2 plus R1 and R3 changes R3 minus R1. So we get here 1, 2, 3 first row as it is. Minus 1 plus 1 becomes 0, 1 plus 2 becomes 3, 2 plus 3 becomes 5. And here 1 minus 1 becomes 0, 2 minus 2 becomes 0 and 4 minus 3 becomes 1. Same here 2 plus 1 becomes 3 and 3 minus 1 becomes 2. Same operation on the right hand side. So we get this 1, 0, 0 first column is ready. Now we want here 0, 1, 0. So for 0, 1, 0 what should we do? Now see in the next step. Applying R2 changes 1 by 3 into R2 means dividing by 3 in रो 2. तो जब भी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे रो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखो 0/3 0 3/3 1 5/3 5/3 first row as it is 1 2 3 and third row also same 0 0 1. So here this was 3 यहाँ 3/3 क्या हो गया 1 तो 1 1 2 क्लियर ये यहाँ से कंफर्म कर सकते हो हमने R2 को क्या किया 3 से डिवाइड तो 0 1 5/3 1 ये हो गया यही एक चेंज करके यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए 0 ये एलिमेंट को 0 बनाना है। ये एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 माइनस 2 R2। तो देखो अब यहाँ पर क्या चेंज होगा 1 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 1 2 माइनस 2 0 3 माइनस 10/3 3 minus 10/3 becomes what minus 1/3 and here second row as it is 0 1 5/3 same and third row also same 0 0 1 here 1 this is 1 minus 2 so 1 minus 2 becomes what minus 1 and 1 2 as it is right because there is no change in R2 and R3। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं अब इसके बाद यहाँ पर 2 कॉलम्स आर रेडी देखो 1 0 0 0 1 0 रेडी हो गया और यहाँ पर 1 है ऑलरेडी तो हमें 1 बनाने की नीड भी नहीं है 1 है तो अब इन दोनों को 0 0 इजिली ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूजिंग R1 चेंजेस R1 प्लस 1/3 इंटू R3 मीन्स R3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके हमें R1 में ऐड करना है ठीक है। और सेकंड ऑपरेशन क्या होगा R2 चेंजेस R2 माइनस 5/3 इंटू R3 ये क्योंकि इसमें देखो ये पॉजिटिव है
हम यहाँ पर माइनस में ले लिए और ये माइनस था तो यहाँ पर प्लस में ले लिए, ठीक है। तो हमारा ये फुल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सी दिस, अप्लाइंग R1 changes R1 plus 1/3 into R3 and R2 changes R2 minus 5/3 into R3. So this will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into x equal to -1 यहाँ पर है और प्लस 2 into 1/3 मीन्स 2/3, तो -3 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2/3, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे वी गेट -1/3। और यहाँ पर देखो 1, दिस इज सेकंड रो, दिस इज 1 और यहाँ पर क्या है -5/3, क्योंकि R2 चेंजेस R2 minus 5/3 R3, तो यहाँ पर 1 minus 2 into 5/3, तो 1 minus 10/3 हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा -7/3 and this 2 as it is. Now this matrix converted into an identity matrix, so it can be written as I into X, I for identity matrix. Now therefore Ix equal to -1/3 -7/3 and 2. Therefore but Ix equal to X, reason यहाँ पर दे दिया हूँ, Ix equal to X, so you can write Ix equal to X, therefore X equal to -1/3 कॉमन, यहाँ पर देखो 1/3 7/3 and 2, तो अगर हम लोग इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6/3, राइट। तो टेकिंग -1/3 कॉमन वी गेट 1 7 एंड -6, क्योंकि ये पॉजिटिव था हमने माइनस को बाहर लिया तो माइनस इंटू प्लस माइनस और ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 2 जा 6 और इसमें से 1/3 कॉमन हो गए, तो -1/3 कॉमन वी गेट 1 7 -6। Therefore value of matrix X is -1/3 into 1 7 -6. So this is the value of X. Anyone can say X equal to this much also. ये भी आंसर लिखोगे तो भी करेक्ट है और 1/3 -1/3 कॉमन कर लोगे तो भी करेक्ट है, बोथ आर राइट आंसर्स। तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉमन करना है या नहीं, बोथ आर करेक्ट आंसर्स, यू विल गेट सेम मार्क्स। Okay, now see question number 13. If matrix A 1 1 1 2 and matrix B 4 1 3 1, matrix C 24 7 31 9, so there are 3 matrices. इसके बाद क्या पूछना चाहते हैं, then find matrix X such that A X B equal to C. What is given? A X B equal to C. तो चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे कैसे करना है। Since AX B equal to C given, right? Since AX B equal to C, this is given. तो इसमें देखो हम A और B दोनों मैट्रिक्स की एक साथ वैल्यू रखेंगे तो जो ऑपरेशन अप्लाई करोगे मैट्रिक्स B में भी अप्लाई हो जाएगा और वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x इंटू बी आया है, तो उसके लिए अपने को जब हम लोग x इंटू बी लेते हैं, जैसा भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया कि व्हेन ax इक्वल टू बी गिवन है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्स ए इक्वल टू बी गिवन है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो हमने अगर x इंटू बी में अप्लाई करना है तो ये कॉलम हो जाएगा और a इंटू एक्स में अप्लाई करना है तो रो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स बी को एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स बी एक साथ है, अभी थोड़े समय के लिए अज्यूम कर लो एक्स बी एक साथ है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स ए 1 1 1 2 इंटू एक्स बी को एक साथ रखते हैं और बी का वैल्यू अभी नहीं रखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स सी 24 7 31 9। नाउ कन्वर्ट इट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। So applying R2 changes R2 minus R1, it is very simple. So 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, XB as it is equal to here 24 and 7 as it is, 31 minus 24 7, 9 minus 7 2. Now you want here 0, right? क्योंकि सबको पता है कि 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है यहाँ पर, तो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, R1 माइनस R2। तो अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 माइनस R2, R1 gives R1 minus R2. So therefore 1
0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी, 1 माइनस 1 0 हो गया, इंटू एक्स बी इक्वल्स 24 minus 7 17 and 7 minus 2 becomes 5. Here second row as it is, right? So this identity matrix into xb equal to 17 5 7 2. Therefore I, this is I, so I into xb equal to 17 5 and 7 2. अब I into xb क्या होगा देख लो, since I into xb equal to xb only. Okay, therefore xb equals 17 5 7 2. ये हो गया, ये सिंपल मेथड, एकदम सिंपल एजीएस्ट मेथड दिया हूँ, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें, एकदम आराम से समझ सकते हो, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं। नाउ सी दिस, अब हम लोग क्या करेंगे आगे, कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी। अब ये x इंटू बी टाइप का हो गया, मान लो कि अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन हो गया अपना, कि x इंटू बी इक्वल टू 17 5 एंड 7 2 एक गिवन है अपने पास, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दिस वन 4 1 3 1, तो ये क्या हो गया, x इंटू 4 1 3 1 इक्वल्स 17 5 7 2। तो अब ये यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत ही अटेंटिव होकर के लेक्चर को सुनो और सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। x इंटू 4 1 3 1 using column operation according to its rule. So applying c1 changes c1 minus 3c2, c1 minus 3 times c2, this is c1, this is c2, मीन्स c2 3c2 का मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये माइनस होगा, तो 4 माइनस 3 बिकम्स 1, 3 माइनस 3 बिकम्स 0, c2 रिमेन्स अनचेंज्ड 1 1। सेम ऑपरेशन हियर, 17 minus 3 into 5, that is 17 minus 15 2, here 7 minus 3 into 2, that is 6, 7 minus 6 becomes 1, and column 2 5 2 as it is. Clear? फिर से देख लो क्या लिखा गया, therefore x into 1 1 0 1 equals 2 5 1 2. Applying c2 changes c2 minus c1, c2 changes c2 minus c1. So c2 minus c1 gives what, 1 minus 1 0, 1 minus 0 1, देखो ये c2 हो गया, c1 remains unchanged क्योंकि हमने यहाँ c1 की चेंजिंग के बारे में कोई फार्मूला या कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं किया है। तो 1 0, तो x इंटू 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस हो गए वो भी चेक करो। इन c2 5 minus 2 into 2, that is 5 minus 4, here it is, sorry 5 minus c2 minus c1 only, 5 minus 2 becomes 3, and here 2 minus 1 becomes 1, and c1 remains unchanged to 1. Therefore x into I, this is identity matrix, so x into I equals 2 3 1 1, but x into I equal to x into I is x only, so x equals 2 1 3 1. So this is the matrix x, value of matrix x 2 3 1 1, ये रहा अपना वैल्यू, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो। क्योंकि देखो ए एक्स बी इक्वल टू सी, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमें तीनों की वैल्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। नो, डू नॉट सब्स्टिट्यूट ऑल द थ्री वैल्यूज एट अ टाइम, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन होगा और रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा होगा, इसलिए एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे और ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 2 3 1 1 5 2 4 7 बाई विच मेथड, एडजॉइंट मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी बहुत से कर चुके हो, और क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी के जैसा है, इसी पर बेस्ड है, इसी के जैसा है, सिमिलर है। तो मैं क्वेश्चन 15 सॉल्व कर देता हूँ और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लेंगे। खुद से ट्राई करो, अगर कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई क्वेश्चन नंबर 14 in homework. If any doubt, you can ask in the comment box. Now see question number 15. Find the inverse of 1 0 1 0 2 3 1 2 1 by adjoint method.
सेम मेथड है, तो 14 के लिए भी और इसके लिए भी, तो इसी मेथड से 14 भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट a इक्वल्स 1 0 1 0 2 3 1 2 3 सॉरी 1 2 1। तो ये अपना 3x3 का मैट्रिक्स एक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि इन्वर्स एग्जिस्ट्स है या नहीं है, एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट की केस में नॉट इक्वल टू 0 होगा और डज नॉट एग्जिस्ट की केस में इक्वल टू 0 होगा। तो चलो चेक करते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेट ए इक्वल्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 0 2 3 1 2 1। तो सबसे पहले एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट को, टेकिंग 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 0 इंटू समथिंग, सब 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं इसके साथ में, प्लस 1, दिस कॉलम कैंसिल, दिस रो कैंसिल, 0 इंटू 2 0 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 0 माइनस 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट हियर माइनस 4 and here minus 2, total becomes minus 6 is not equal to 0, therefore A inverse exists. Now what we have to do, find cofactors. So cofactors are first one a11, ये कोफैक्टर का सिंबल है a11 इक्वल्स माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू, अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a11 का मीनिंग क्या है, डू नॉट टेक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम नहीं लेना है, लेना क्या है फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 3 2 1 और एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेना है। तो 2 3 2 1 और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो पता ही है सबको, पहले से ही करते आ रहे हो, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 और यहाँ माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 1 बिकम्स व्हाट 1, ये सिंप्लीफाई माइनस 1 स्क्वायर इज व्हाट 1, ये 2 इंटू 1 2 minus 2 into 3 minus 6, so 1 into 2 minus 6 is minus 4, a12 minus 1 raised to 1 plus 2, this will be 0 3 1 1 minus 1 into 0 minus 3 and minus minus plus becomes 3, a13 first row third column minus 1 raised to 1 plus 3 0 2 1 2, सेम प्रोसेस है यहाँ पर, जो यहाँ लिखा गया उसको नहीं लेना है, ध्यान देना, जो यहाँ पर इसे 1 3 तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को नहीं लेना है, रिमेनिंग एलिमेंट को यहाँ लिखोगे 0 2 1 2, तो दिस इज माइनस 1 रेज टू 4 दैट इज प्लस 1, हियर 0 इंटू 2 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 0 माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 1 बिकम्स माइनस 2, a21 माइनस 1 रेज टू 2 प्लस 1 0 1 2 1, this is minus 1, so minus sign comes here and here 0 minus 2 becomes plus 2. Now a22 minus 1 raised to 2 plus 2 1 1 1 1, तो यहाँ पर 1 into 1 minus 1 into 1 that is 1 minus 1 becomes 0, so 0 into something 0, a23 minus 1 raised to 2 plus 3, here 1 0 1 2 minus 1 raised to 5 minus 1 2 minus 0 that is माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर है 2 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 बिकम्स माइनस 2, a31 माइनस 1 रेज टू 3 प्लस 1 0 1 2 3, so this is minus 1 raised to 6 equal to 1 and here 0 into 3 0 minus 2 becomes minus 2 and a32 minus 1 raised to 3 plus 2 1 1 0 3, so this is minus 1, this gives minus 1 here, it is 1 into 3 3 minus 0 minus 3 and a33 minus 1 raised to 3 plus 3 1 0 0 2, this is 1, so 1 here and 1 into 2 2 minus 0 that is 2, since adjoint of A, अब इसके बाद क्या करना, after getting cofactors write the value of matrix of adjoint of A, तो adjoint of A equals, ये फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, a11 किस ऑर्डर में लिखना है उसको भी ध्यान दो कि आफ्टर गेटिंग कोफैक्टर्स फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स a11 a12 a13, ये कॉलम वाइज लिखना है, ठीक है, a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो इसी ऑर्डर में इसी सीक्वेंस में इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो,
और देखो फर्स्ट 3 वैल्यूज -4 3 -2, सेकंड 3 वैल्यूज देखना है तो यहाँ पर पीछे चलना पड़ेगा, -4 3 -2, ये हमने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। सेकंड 3 वैल्यूज 2 0 -2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 0 -2, एंड लास्ट 3 वैल्यूज -2 -3 2 -2 -3 2। तो ये अपना हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस मच, ये अपना मैट्रिक्स जो है दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स, सिंस A inverse equals 1 upon det A into adjoint of A. So therefore A inverse equal to 1 upon -6 or -1 by 6, -4 2 -2 3 0 -3 -2 -2 2। अब इसमें ऐसा भी आंसर लिख के छोड़ सकते हो, या माइनस साइन को अगर अंदर लेना है तो ये सभी की साइन क्या करना है, चेंज कर दें। यहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, और 1/6 को बाहर ही रखते हैं आउटसाइड। सो ए इनवर्स इक्वल टू -1/6 इंटू दिस मैट्रिक्स। ये रहा अपना इनवर्स ऑफ ए बाय एडजॉइंट मेथड। तो अपने को एडजॉइंट मेथड में को फैक्टर्स फाइंड करना जरूरी है, और अगर किसी को माइनर्स भी लिखना है जैसे M11 M12 M13 तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी को फैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन स्टेप्स लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने माइनर्स यहाँ शो नहीं किया है। डायरेक्टली को फैक्टर्स भी अलाउड है और को फैक्टर से ही स्टार्ट करना है सोल्यूशन अपना। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड एंड बाय एलिमेंट्री transformations if a equal to 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। तो डियर स्टूडेंट्स अभी अभी हमने एडजॉइंट मेथड क्वेश्चन नंबर 15 में बताया, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहले मैट्रिक्स ए लिखता हूँ, सिंस ए इक्वल टू 1 2 3 -1 1 2 1 2 4, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। देयरफॉर डेट ए इक्वल्स 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। Now expand it. See 1 into 4 minus 2 into 2, that is 4 minus 4, ये 0 हो जाएगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। 0 into 1 that is 0। माइनस 2 here, क्योंकि अपना रूल है प्लस माइनस प्लस, तो -2 into this column cancelled, this row cancelled, -1 into 4 -4 -2, तो -4 -2 -6, और -6 into -2 +12, plus last element 3, with this row column cancel and this row cancel, -2 -1, -2 -1 becomes -3, और -3 into 3 -9, तो यहाँ पर क्या आया था 12, और 12 - 9 is 3 is not equal to 0, therefore A inverse exists। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने देखो A11 A12 A13 नहीं फाइंड किया है, बट यू हैव टू राइट हियर ऑल द को फैक्टर्स। यहाँ सभी को फैक्टर्स लिखने के बाद ये एडजॉइंट ए फाइंड करो, क्योंकि इसमें 2 मेथड्स है, तो मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पूरा बता देता हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो एडजॉइंट मेथड है वो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये सेल्फ फाइंड करो। उनके वैल्यूज क्या आएंगे वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सिंस एडजॉइंट ऑफ ए मैंने डायरेक्टली लिया है 0 6 -3, यही है A11 A12 A13, जैसा अभी ऊपर मैंने फार्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग, और ये है A21 A22 A23 मीन्स -2 1 0, और यहाँ पर क्या आएगा A31 A32 A33 मीन्स 1 -5 3। तो सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, अब इसके बाद हमें यहाँ पर डायरेक्टली इनवर्स के फॉर्म में, सिंस A inverse is 1 upon det A into adjoint A, this is formula, so therefore A inverse equals 1/3, this 3 is 1 upon det A, 1 upon 3 into 0 -2 1 6 1 -5 -3 0 3। ये हो गया अपना वैल्यू ऑफ A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ सेम मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन में फाइंड करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। So now using row transformation method, so now by row transformations
For row transformation, what we need first, since A into A inverse equal to I. A into A inverse equal to I. So substituting the value of matrix A here, 1, 2, 3, minus 1, 1, 2, 1, 2, 4 into A inverse equal to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Identity matrix of order 3 by 3. अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 प्लस R1, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 0 0 लाना होता है सबसे पहले, तो ये हमने 2 ऑपरेशंस एक साथ कर दिए हैं. R2 चेंजेस R2 प्लस R1 एंड R3 चेंजेस R3 माइनस R1. तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर. फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3 सेम लिखना है, 1 2 3 जैसा है वहाँ लिखोगे. और यहाँ देखो -1 + 1 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 1 + 1 -1 becomes 0, 2 - 2 becomes 0, and 4 - 3 becomes 1. Right hand side 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, and here 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1. ये रहा अपना R3 चेंजेस R3 माइनस R1 एंड R2 चेंजेस R2 प्लस R1. तो एक अपने न्यू मैट्रिक्स दोनों साइड मिल गए. अब इसके बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पर 0 1 0, तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाते हैं. इस केस में क्या करना है 1. तो अप्लाइंग R2 चेंजेस 1/3 R2 मीन्स R2 रो 2 को 3 से डिवाइड करना है बोथ साइड्स. तो बोथ साइड डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3, सेकंड रो 0 1, दिस विल बी 1 and this is 5/3, and third row as it is 0 0 1 into A inverse equal 1 0 0 as it is here, 1/3 1/3 0, and third row -1 0 1. Applying R1 changes R1 minus 2 times R2. R1 changes R1 minus 2 times R2. So this will be 1 minus 2 into 0, that is 1 here, and here 2 minus 2 gives 0, and here 3 minus 10/3, that is -1/3 after simplification, and second row remains unchanged, third row remains unchanged, into A inverse equal to first row becomes. अब यहाँ पर देखो अपने पास ये 1 - 2/3 हो जाएगा, that is 1/3. here 0 - 2/3 -2/3, 0 - 0 becomes 0. second row same and third row same. इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इनको सेम टू सेम लिख लेना है. सिर्फ एक ही ऑपरेशन था, R1 चेंजेस R1 माइनस 2 टाइम्स R2. इसका मीनिंग है कि सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 से माइनस करना है. ठीक. नाउ सी अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 प्लस 1/3 इंटू R3. R1 changes R1 plus 1/3 into R3, and R2 changes R2 minus 5/3 R3. So this gives R1 plus 1/3 R3. Now see this, 1 plus 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, that is 1 plus 0 is 1. Here 0 0 both are 0 0, minus 1/3 plus 1/3 becomes 0. और 0 माइनस यहाँ पर भी फिर से आएगा, 0 minus 0 0, 1 minus 0 1, 5/3 minus 5/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर 0 हो गया. और थर्ड रो अनचेंज्ड 0 0 1 इंटू A इनवर्स इक्वल. अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये इन दोनों को माइनस कर रहे हो, तो इसको और इसको ये दोनों को माइनस कर रहे हो यहाँ पर R1 प्लस R3, तो R1 1/3 और यहाँ पर प्लस -1/3 हो जाएगा, तो -1/3 प्लस 1/3 बिकम्स 0. एंड हियर -2/3, यहाँ 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 है और प्लस 1/3 1/3. फिर इसके बाद R2 चेंजेस R2 minus 5/3 टाइम्स R3. ये ध्यान देना, R2 चेंजेस R2 minus 5/3 इंटू R3 मीन्स R3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस करना है, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए ये 0 बनाने के लिए हमने रूल अप्लाई किया है. इस साइड तो 0 हो गया, लेकिन अब इस साइड क्या चेंजेस होगा वो देखो, 1/3 प्लस 5/3, 1/3 प्लस 5/3 क्या हो जाएगा 6/3, दैट इज 2. और यहाँ 1/3 माइनस 5/3 इंटू 0, दैट इज 1/3, 0 माइनस 5/3 माइनस 5/3,
R3 will have no change, -1, 0 and 1. ये सेम टू सेम लिखना है। तो अब ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? दिस इज कन्वर्टेड इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देयरफॉर I into A इनवर्स इक्वल टू 0 -2/3, 1/3, 2, 1/3, -1/3, -1, 0, 1 मीन्स जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं सेम एलिमेंट्स यहाँ पर एंट्री करनी है। तो दिस इज आइडेंटिटी, सो I into A इनवर्स इज दिस, बट I into A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स, तो देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स 1/3 कॉमन फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। हमने यहाँ से 1/3 कॉमन कर लिया, मीन्स सभी का डिनोमिनेटर अगर 3 बनाते हो तो सब 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जिसमें 3/3 नहीं है। तो जब ये 1/3 कॉमन करोगे तो जिसमें अपॉन 3 नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई कर देना, सीधी सी बात, ठीक है? तो चलो, दिस विल बी 0, दिस विल बी -2, 1, ईयर 2, यहाँ पर अपॉन 3 नहीं है तो ये हो जाएगा 3 × 2 6, यहाँ पर 1/3 दैट इज़ 1, -5/3 से -5, -1 है यहाँ -3, यह 0 है नो इफेक्ट, और यहाँ 1 है तो इंटू 3 हो जाएगा तो 3, क्योंकि हमने यहाँ 1/3 किया है कॉमन। तो यहाँ पर भी डबल आंसर्स लिख सकते हो। एक आंसर तो यही है, A इनवर्स इक्वल टू दिस मच, ये पूरा, ये A इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, अपॉन फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या A इनवर्स इक्वल टू 1/3 कॉमन इनटू दिस मैट्रिक्स सिंस I A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स। तो ये अपना 6th क्वेश्चन तक ये कंप्लीट हुआ। तो 6th क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करके यहाँ पर आज स्टॉप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में अच्छे से आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू।